Okay, beta. So in this class, the plan is enthalpy changes. So I'm going to start with the basic revision of the theoretical stuff, just to emphasize que, you have to which definitions you have to memorize, and then we will move forward towards the calculations, focus more on calculations, and it's going to be the last revision for enthalpy changes. So इसलिए ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिए, and I'm sure कि if you once do it by yourself, keeping those few key points in mind, I'm sure कि you'll be able to do the calculations. ठीक है, बस key point ये है कि आपको थोड़ा सा समझ के करना है, read question carefully and then just understand, try to understand कि आपको जो है वो data क्या given है and how you have to solve those type of questions. ठीक है, so let's start with the basic, the first key point and the most important is they normally ask about the standard enthalpy change. Okay, so you should know about the standard conditions. There is 1 mark for this standard condition. ठीक है, ये 1 mark का पूछा जाता है. So you should know कि standard conditions जो हैं वो क्या-क्या होती हैं. So this is basically the temperature 298 Kelvin, pressure 1 atmosphere. ठीक है, and all substances, no matter it's an element or it's a molecule, it must be in a standard physical state. ठीक है, उनकी physical state standard होनी चाहिए, यानी water liquid form में होता है, only combustion में water gas भी acceptable है. If you have carbon dioxide, it must be gas, ammonia gas, nitrogen gas, carbon solid form में होना चाहिए, hydrogen gas and so on. ठीक है, clear? To memorize or to figure out the standard enthalpy, sorry, the standard condition, the standard physical state, sorry, standard physical state of compounds, वो तो common के तो आपको याद ही होते हैं कि ये gases होते हैं, ये liquids होते हैं, लेकिन for elements is very easy. ठीक है, elements के लिए बस इतना याद रखिएगा कि we just have 2 liquids in a periodic table. One is bromine and the other one is mercury. 2 liquids, bromine and mercury. We have a few gases, जैसे nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, and noble gases. ठीक है, क्या क्या थे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो आपको याद ही है. ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन भी याद है आपको, सही है. और ऑल ग्रुप 8 एलिमेंट लाइक द नोबल गैसेस, ये 6 हमारे पास गैसेस होती हैं. तो 2 लिक्विड, 6 गैसेस, all other elements are solid. जितने भी बाकी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हैं? Solid हैं. ठीक है, बात मैंने क्लास में भी आपको बताई थी. Now the first is enthalpy change of reaction, standard enthalpy change of reaction. Now you should know delta sign मतलब change, HR का मतलब enthalpy change, enthalpy of a reaction. So delta HR means change in enthalpy or enthalpy change of a reaction. और ये जो ऊपर circle के ऊपर cross लगा हुआ है, like phi का sign है, this is a sign of a standard condition. ठीक है, basically this is a sign used for standard condition. ये sign use होता है. Clear? So this is a sign for standard condition. So this is enthalpy change of reaction when any given amount of product, given amount of reactants react together to give product under standard condition. It's very rare that they ask this definition, and I've done like last 15 years में तो I think enthalpy change of a reaction नहीं पूछा गया, but as this is a part of the syllabus, so there is a possibility that they might ask about enthalpy change of a reaction. ठीक है, clear? In a similar way, a standard enthalpy change of formation, very important, and they commonly ask about the definition of enthalpy. तो इसकी definition याद होनी चाहिए, and you should be able to write down the equation for the formation of any given element, no matter it's an organic compound, no matter it's a normal inorganic compound. Enthalpy change of formation की का reaction लिखने की, so पहले तो definition याद होनी चाहिए. अब देखो कितना commonly बात है, कितना emphasize करके बताया in a classroom, and now I am telling it again. शायद 400-500 बार आपको बता चुका हूँ अब तक about this definition. I am keep saying कि बेटा this recalling part आपके पास जो है वो बहुत important है. ठीक है, in a way कि इससे आपके पास जो है वो ये solid question होते हैं. ठीक है,
क्लियर? सॉलिड क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आपको मतलब आप सही रिप्रोड्यूस कर दो डेफिनेशन एंड गेट योर कंप्लीट मार्क्स. ठीक है? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, द एनर्जी चेंज एसोसिएटेड व्हेन 1 मोल ऑफ अ प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. बस इतनी सी डेफिनेशन है. आखिर में तो आपने लिखना है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. ठीक है? So the enthalpy change associated when 1 mole of a compound is formed from its element in a standard state under standard condition. ये standard state अलग से भी लिख दीजिएगा, under standard condition में भी standard state आ रहे हैं. Now you can see these example, the formation of CH4 from carbon and hydrogen, the formation of carbon dioxide from carbon and oxygen, the formation of water, the formation of methanoic acid. ठीक है? So these are basically the few examples, but beside these examples, you should be able to write down the equation for the formation of any other compound. ठीक है? So if I ask you to write down equation for the standard enthalpy change of formation की equation अगर आपसे पूछी जाए CH3 COOH, this is the carboxylic acid, ethanoic acid. ठीक है? तो अब आपको इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट एक दफा बताना चाह रहा था मैं. जस्ट राइट डाउन 1 मोल ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो जिसकी फॉर्मेशन लिखनी है उसका 1 मोल लिखिए राइट साइड पे. एंड नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इन अ लिक्विड फॉर्म. क्लियर? एरो बनाइए. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स इन्वॉल्व? सो यू कैन सी कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है? हाउ मेनी कार्बन से? 2 कार्बन. कार्बन इज ऑलवेज सॉलिड और मैंने याद भी करवा दिया आपको. 2 हाइड्रोजन गैस फॉर्म एंड ऑक्सीजन इन अ गैस फॉर्म. ठीक है? सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर एनी इंथैल्पी चेंज, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी बस आपने राइट. ठीक है? एक एग्जांपल और मैं आपसे बोलता हूं. इफ आई आस्क यू टू राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ N2H4, कॉमन है, हाइड्रोजीन कहलाता है दिस मॉलिक्यूल. ठीक है? सो यस, राइट डाउन 1 मोल ऑफ N2H4. वैसे ये लिक्विड होता है, लेकिन अगर इसका फिजिकल स्टेट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सो अगर आप लिख देंगे गलत भी होगा तो पार्क पेनलाइज नहीं हो. एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट सही होनी चाहिए. What are the elements involved? Nitrogen, which is a diatomic gas. Hydrogen, which is also a diatomic gas. ठीक है? Both are gases. अभी हमने याद किया oxygen, hydrogen, nitrogen are gases. Clear? Now this is not a balanced equation, so you have to place 2 here. We are bound to place 1 mole on the product side. यहाँ पर 1 mole होना चाहिए, चाहे आपको लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन लगाना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है? बट यहाँ पर आप कोई भी कोफिशिएंट प्लेस नहीं कर सकते. ठीक है ना? सो दिस इज फॉर्मेशन. फॉर्मेशन की डेफिनेशन आपको हो गई. या आगे चलते हैं. कंबस्टन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एंड कॉमन है कि 3 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, उसके बाद एक इक्वेशन पूछी जाती है, तो 4 मार्क्स यहाँ पर आपके पास हो जाते हैं. समटाइम दे आस्क अबाउट द स्टैंडर्ड लाइक कंडीशंस सेपरेटली. 1 मार्क उसका हो जाता है, तो 3-4 मार्क्स सिर्फ रिकॉलिंग स्टफ के आपको मिल जाते हैं. ठीक है? So yes, the enthalpy change when 1 mole of a substance, it could be an element, it could be a compound. ठीक है? Burn in an excess of oxygen. जब भी excess of oxygen में burn होगा. Why we are using an excess of oxygen? To ensure the complete combustion. ठीक है? To form its combustion product under standard condition. ये definition भाई 2 लाइनों की है. प्लीज इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा. तो रिकॉलिंग और याद करना definition is just the one part. The second part, you should be able to write down the equation for the combustion of any given molecule. Normally, the molecule they give consist of carbon, hydrogen, oxygen and sulfur वगैरह के ही compound होते हैं. Normally organic compound से related पूछी जाती है. तो एक key point ये याद रखिएगा कि whenever you have carbon in any form, the one of the combustion product should be carbon dioxide. अब चाहे वो कोई भी, it means that whenever any organic compound, alkane, alkenes, alcohol, carboxylic acid, whatever it is, burn in an excess of oxygen, carbon dioxide is compulsory. ठीक है? Whenever you see hydrogen in any form, चाहे CH4 में हो, चाहे carboxylic acid में हो, hydrogen तो होते ही यार organic compound में. So the other product is water. Whenever you see sulfur in any form, combustion product, sulfur dioxide होगी, nitrogen है तो nitrogen
dioxide होगी. If you have any metal involved, like magnesium नजर आ रहा है आपको, so the combustion product is magnesium oxide. ठीक है? So here बेटा mute कीजिए आपको. Ahmed, please mute yourself. So please ask question just after a while. Okay, so yes, CH4 plus O2 forming carbon dioxide and water, and then you have ethanoic acid. You can see whenever I see carbon dioxide and water is a product, whenever I see carbon and hydrogen. अच्छा, दूसरी बात ये है कि whatever the compound reacting with oxygen, उसके साथ 1 mole आपको लगाना पड़ेगा. ठीक है? इन इक्वेशन में बस की पॉइंट ये याद रखिएगा, ये की पॉइंट है. The equation for the combustion of hydrogen and the formation of water is exactly same. So चाहे आप उसे combustion of hydrogen बोलिए या formation of water बोलिए, as this is the equation first line वाली. ठीक है? This is the equation. You can see 1 mole of hydrogen burn in excess of oxygen to give its combustion product, which is water. और अगर water की formation के हिसाब से इस equation को पढ़ेंगे तो भी valid है. क्या equation है कि when 1 mole of water is formed from its element, which is hydrogen and oxygen. So this is basically valid for both, and these three are the equations. और ये important बात है, questions में भी काम आएगा कि आपको combustion of carbon required होगी, उसने formation of carbon dioxide कह के उसे given किया होगा, दिया होगा आपको. So don't get worried about it. ठीक है? Either it's a combustion of carbon or the formation of carbon dioxide. It's going to be the same thing, same value, same equation. ठीक है? तो ये 3 key point. And this is the key point, which is very important, that the combustion of hydrogen, the formation of water, combustion of carbon, formation of carbon dioxide, combustion of sulfur, formation of sulfur dioxide. ठीक है? Neutralization, yes. Now, from now onward, neutralization is a part of our AS syllabus. So I'm expecting this definition this year. ठीक है? पूछी जा सकती है. The energy release, याद रखिएगा, neutralization is always an exothermic reaction. वो levels में पढ़ाते हैं हम. It's always exothermic. Energy is always released when acid reacts with a base. ठीक है? और आपको याद होगा कि acid base reaction में it's always the formation of water takes place. Whenever acid react with an alkali, it's always forming salt and a water. Okay? And the ionic equation for all acid-base reaction is H positive plus OH negative forming H2O. वो levels में पढ़ाते हैं ना कि whenever you have any acid, any alkali, whenever they react, the ionic equation is this. चाहे sulfuric acid sodium hydroxide के साथ react करे या hydrochloric acid potassium hydroxide के साथ react करे, the ionic equation is always H positive plus OH negative forming H2O. That's why we relate the standard enthalpy change of neutralization with the formation of water. But the formation of water as a result of a reaction between acid and alkali. So ये definition आपको याद होनी चाहिए. The standard enthalpy change when 1 mole of a water is formed by the reaction of acid and ठीक है? And it should be any definition in any equation. जैसे HCl react कर रहा है sodium hydroxide के साथ forming sodium chloride and water. Second equation में आपको नजर आ रहा है कि salt and a water is formed, but you have 2 moles of water formed. So this is not neutralization, क्योंकि neutralization में 1 mole बनना चाहिए. लेकिन देखो इस equation में सिर्फ 2 moles का difference है, बाकी सारी चीजें as per definition है. Acid भी है, alkali भी है, salt भी बन रहा है, water भी बन रहा है. ठीक है? But the only difference is 2 moles of water is formed. So अगर मैं whatever the value is given, अगर मैं value को 2 से divide कर दूंगा तो ये neutralization में convert हो जाएगी, या equation को 2 से divide करके लिख दूंगा, so it will become 1 mole of water. ठीक है? When it become 1 mole of water, left side पे acid और alkali, it become enthalpy change of neutralization. तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपको एक ऐसी equation दे दे जिसमें एसिड भी हो, एल्कली भी हो, सॉल्ट भी बन रहा हो, बट 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हो, और वो आपसे बोले कि एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि इसकी वैल्यू को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है? की पॉइंट है, P2 में भी पूछा जा सकता है, मोस्ट कॉमनली P1 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है? क्लियर? सो दिस इज द एरिया ऑफ डेफिनेशन. नाउ दिस पार्ट very important, that you should know which enthalpy change is exothermic, which is endothermic. Reaction could be endothermic, exothermic, because it's a general definition applied for, applicable on all type of reaction. Formation could be positive or negative. Combustion हमेशा exothermic है. Neutralization is always exothermic. ठीक है? So these are basically the definition that's a part of our current syllabus. Now बेटा mute कर लो खुद को.
measurement of enthalpy. Calorimetry more like डिटेल इसकी ज्यादा जो है वो P3 में है, बट देयर आर सम क्वेश्चन इन P2 रिगार्डिंग टू दिस. ठीक है. मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंज एक्सपेरिमेंटल मेथड है, कैलोरीमेट्री कहलाता है. कैलोरीमेट्री कहलाता है. ठीक है. और कैलोरीमेट्री में क्या होता है बेटा कि बेसिकली इट इज जस्ट अ पॉलीस्टीरीन कप. एक सिंपल सा पॉलीस्टीरीन कप होता है. पॉलीस्टीरीन कप, एनी प्लास्टिक कप, any coffee cup or a plastic cup. ठीक है. In which you have less heat losses, and then you take one reactant, find out the initial temperature. ठीक है. And then you add the other reactant of a specific quantity, find out the final temperature. By the whole experiment of this calorimetry, you only finding out the temperature before the reaction and the temperature after the reaction. Like आपको सिर्फ delta T चाहिए होता है. Clear? So you should what measurement you should make. एग्जाम में पूछा जाता है. तो मास ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए आपके पास, टोटल मास. ठीक है. इनिशियल टेम्परेचर होना चाहिए, फाइनल टेम्परेचर होना चाहिए. क्लियर. एंड देन यू अप्लाई Q is equal to MC delta T. Clear. Q is the energy released or absorbed, M is the mass of solution, delta T change in temperature, C is the specific heat capacity. इसको माइनस MC delta T भी कर सकते हैं. ठीक है. Q को अगर Q से आपको डायरेक्ट एंथैल्पी चेंज चाहिए, अपना Q को एंथैल्पी चेंज में कन्वर्ट करना है, साइन का डिफरेंस आ रहा है तो माइनस. वरना मैंने आपको ये सिखाया है कि आप Q is equal to MC delta T से Q वैल्यू निकाल लीजिए. Q वैल्यू इज ऑलवेज इन जूल्स में आएगी आपके पास, डिवाइडेड बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू अ किलो जूल्स. जब आपके पास Q किलो जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, then divide it by the number of moles of the limiting reactant. Normally अगर solid liquid का केस है तो solid is the limiting reactant. solid के मोल से डिवाइड कर दीजिए. एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन है तो जिस सब्सटेंस की कंबस्टन हो रही है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो कोई कार्बन है, कुछ भी है, उसके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें तो आपके पास एंथैल्पी चेंज आ जाएगा. अब अगर आप देखें कि डेल्टा टी यानी राइज इन टेम्परेचर हुआ था. ठीक है. तो Q की तो आप डेल्टा H की वैल्यू जो है वो नेगेटिव लगा दें. अगर फॉल इन टेम्परेचर हुआ था तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव लगा दें. ठीक है. क्लियर. अभी हम इस पे आगे बात करेंगे. यहाँ पर Q इक्वल टू MC डेल्टा T में Q हीट एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब जूल्स में है, मास ऑफ सॉल्यूशन है ग्राम्स में, चेंज इन टेम्परेचर है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है व्हिच इज 4.18. सम टाइम इन ओल्ड फॉर्मेट क्वेश्चन इट्स 4.2 इज गिवन. ठीक है. क्लियर. अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि M is the mass of solution. There are two cases for the mass of solution. Like it could be a chemical reaction in which they are mixing two liquids together. पहले एक लिक्विड लिया, इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट किया, दूसरा लिक्विड ऐड किया, मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर आ गया. नाउ एज दे आर मिक्सिंग टू लिक्विड्स, तो आप M की जगह पे दोनों लिक्विड के वॉल्यूम्स को ऐड करके लिखेंगे इन ग्राम्स. Like 50 cm cube of one and the 50 cm cube of other, the total volume of the solution is 100 cm cube, and you take it as 100 gram because we are dealing with aqueous solution, mainly water based solution में deal करते हैं, and the density of water is 1 gram per cm cube. यानी 1 cm cube of water 1 gram के equivalent होता है. ठीक है. इसलिए हम 100 cm cube को 100 gram consider करेंगे. ये सारे aqueous solution होते हैं तो हर बार हमेशा ऐसे ही करना है. There is no exception in this one. But if you are dealing with the reaction in which you have one liquid and one solid, ठीक है, तो only take the volume of a or the mass of a liquid. solid को ignore करेंगे. ठीक है. क्योंकि solid react कर जाता है, इससे वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं आता. जब वॉल्यूम पे फर्क नहीं आता तो हम कंसिडर करते हैं कि मास पे भी कोई फर्क नहीं आ रहा है. यानी यहाँ AM 50 cm क्यूब में 2 ग्राम सॉलिड ऐड किया है तो प्लीज M की जगह 50 ग्राम लीजिएगा, 52 नहीं लीजिएगा. 52 इज द रॉन्ग तरीका इसको सॉल्व करने का. ठीक है. बार बार लिख रहा हूं, डू नॉट ऐड द मास ऑफ सॉलिड. थर्ड कोई केसेस में नहीं हो सकता, यही दो केसेस हो सकते हैं. क्लियर. इन अ सिमिलर वे डेल्टा टी नॉर्मली हमें जो है वो चाहिए होता है केल्विन में, जूल्स पर केल्विन पर मोल आपको नजर आती है C की वैल्यू विच इज 4.18, बट वी डू नॉट कन्वर्ट डेल्टा टी इनटू केल्विन. अगर डिग्री सेल्सियस में है तो उसी में लेते हैं बिकॉज हम इसमें इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. चेंज इन टेम्परेचर की न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ डिग्री सेल्सियस इन अ केल्विन सेम होती है हमेशा. ठीक है. क्लियर. उसके बाद आप एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए माइनस Q ओवर N कर देते हैं. माइनस साइन किस लिए लगाया है? क्योंकि आपका एंथैल्पी चेंज का साइन करेक्ट आ जाए. ठीक है. तो यहाँ पे माइनस साइन आप लगा सकते हैं. तो किलो जूल्स डिवाइडेड बाय N.
क्लियर। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आप देख लीजिए, Q की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, डेल्टा H के माइनस लगाया तो उस माइनस की वजह से डेल्टा H नेगेटिव, यानी Q अगर नेगेटिव है तो डेल्टा H पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये छोटा सा फॉर्मेट है कि फॉर्मूले में मैंने माइनस क्यों लगाया है, ठीक है। तो ये माइनस इसलिए जरूरी है ताकि आपके एंथैल्पी चेंज का साइन करेक्ट आ जाए। आप सिंपल तरीके से क्यू निकालिए, राइज इन टेम्परेचर आ रहा है, फॉल इन टेम्परेचर आ रहा है, जो भी आ रहा है, जब आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी तो क्यू की वैल्यू उसके साइन के साथ आप यहाँ प्लेस करेंगे, तो ये जो बाहर माइनस लगा हुआ है ये एंथैल्पी चेंज के साइन को सही ले आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये की पॉइंट Q इक्वल MC डेल्टा T, उसको सही तरीके से अप्लाई करना और उसे एंथैल्पी चेंज में कन्वर्ट करना, सही है। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो देखो इसी की बेस पर दिस इज अ क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। देखो पूछी गई रिएक्शन की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ दैट मुझसे गलती हो गई थी, मैंने जो वहां आपसे बोल दिया था कि नहीं पूछी गई है, नहीं ये पूछी गई है, और अभी ही देखो मुझे गलत साबित कर दिया पास पेपर ने। रिएक्शन, कंबस्शन, फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन, चारों डेफिनेशन आती हैं, चारों अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। सो आप लिख सकते हैं, व्हेन द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। आसान है, 2 मार्क्स पक्के आने चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए, टेक योर टाइम। जब भी Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T अप्लाई करवाएगा, फिर वो सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, हाइड्रेशन भी पूछ सकता है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लेकिन वो कुछ भी पूछ सकता है, उस नोटेशन से परेशान नहीं होएगा। उसने रिएक्शन नहीं पूछा कंबर, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T में वो कुछ भी पूछ सकता है। हैसेस लॉ में हमेशा या तो रिएक्शन कंबस्शन या रिएक्शन फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, या बॉन्ड एनर्जी की बेसिस पे होगा। अब सवाल पढ़िए, उसने कहा कि हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके लिए उसने क्या किया, 45 ग्राम ऑफ वाटर लिया, उसमें 3.01 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऐड किया। टेम्परेचर जो है वो 24.3 से 34 राइज इन टेम्परेचर हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर टू द वाटर। याद रखिएगा, हीट एनर्जी रिलीज और हीट एनर्जी ट्रांसफर, सॉरी, हीट एनर्जी ट्रांसफर इज बेसिकली क्यू कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, दे आस्किंग अबाउट द क्यू वैल्यू, यू कैन अज्यूम दैट द वैल्यू, सो हीट एनर्जी क्या होगी, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। मैं सिर्फ वैल्यूज लगाऊंगा, Q आपके पास आ जाएगा बेटा M होगा 45, वी डू नॉट इंक्लूड द मास ऑफ सॉलिड, इसे इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 45 मल्टीप्लाई बाय C इज 4.18 एंड डेल्टा T आपके पास आ जाएगा विच इज 34.7 माइनस 23.4, ठीक है। आपके पास Q वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी याद रखिएगा Q वैल्यू हमेशा जूल्स में आएगी। इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट्स द वैल्यू फॉर दिस वन बेटा? एक कोई कैलकुलेटर उठा लेता कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सेफली हो जाए। मुझे याद पड़े 2120 को चांस बता दो भाई, किसी कोई एक कैलकुलेटर उठाओ जल्दी से। 2125.53 यस 2125 ठीक है बेटा, ये आपके पास क्यों आ गया, गुड। अब उसने कहा कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। सो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स, मास इज गिवन, mr से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मास है 3.01 और इसको mr ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट से डिवाइड करोगे, mr हो जाएगा मैग्नीशियम इज 24.1, सल्फर इज 32.1 एंड ऑक्सीजन है 16। तो जरा mr निकाल के मोल्स निकालो, आई थिंक 0.025 आएगा, 0.05 आएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या आंसर है, आप लोग खुद तो सॉल्व करते नहीं है, फिर मेरा इंतजार करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ ये हाइड्रेशन, द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड कैरिंग आउट सेपरेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
सही है। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है आपको, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा एच निकालने के लिए माइनस क्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, माइनस क्यू मतलब -2125.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgSO4, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगी, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी। याद रखना कुछ भी वो पूछ रहा हो, पहले उसने क्यू पूछा हो, उसके नेक्स्ट पार्ट में मोल्स निकलवाए हो, तो आप हमेशा इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी की पॉइंट ये है यहाँ पर कि हमेशा याद रखिएगा, ये जब आप Q को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं, तो अगर आपके पास केस है बेटा सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड का, सॉलिड प्लस लिक्विड का केस है, जैसे अभी हमने किया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड हमेशा लिमिटिंग होते हैं, हमेशा आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे अभी हमने मैग्नीशियम सल्फेट के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया डेल्टा एच निकालने के लिए, क्लियर। तो मेजर आपको बहुत क्लियरली पता होगा कि कौन, क्योंकि वाटर हमेशा या लिक्विड हमेशा एक्सेस में ही लिया जाता है, सही है, क्लियर। और उसके बाद ये तो नॉर्मल Q इक्वल टू MC डेल्टा टी अप्लाई करना आना चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन है P1 में, बहुत सारे क्वेश्चन है, P1 से इसकी प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हैं कैलकुलेशन की। उसके बाद P2 के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। P2 में तो वही 1 मार्क का जो वहां MCQ पूछा जाता है, सेम कैलकुलेशन दे आस्किंग फॉर 2-3 मार्क्स, तो ज्यादा आसान हो जाता है एंथैल्पी P2 में सॉल्व करना। हैसेस लॉ, बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन हैस लॉ की आपको याद होनी चाहिए। हैसेस लॉ, द एंथैल्पी by the reaction, provided that the initial and the final conditions are same, means if you are getting the same product from the same reactant, no matter जिस तरह भी वो reaction proceed करे, delta HR remains same। इस बात को समझाने के लिए मैंने ये first law of thermodynamics नहीं है, it is based on the first law of thermodynamics, ठीक है, clear। and to explain under Hass's law correctly, मैंने आपको कहा था कि भाई देखो, कैटलिस्ट क्या करता है, डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू बाय परफॉर्मिंग द सेम रिएक्शन थ्रू एन अल्टरनेटिव रूट, यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बट इन अ लेस टाइम। कैटलिस्ट का ये काम होता है ना, सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से मिलता है, लेकिन लेस टाइम में मिलता है, क्लियर। तो कैटलिस्ट की वजह से क्या एंथैल्पी चेंज में कोई फर्क आ रहा है, दिस इज एंथैल्पी प्रोफाइल डायग्राम, और इससे बहुत क्लियर है कि एंथैल्पी में कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। द एंथैल्पी इज एग्जैक्टली सेम, ऐसे ही है। सो दिस इज बेसिकली द हैसेस लॉ। डायरेक्ट रूट और इनडायरेक्ट रूट की एंथैल्पी हमेशा बराबर होती है। द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इनडायरेक्ट रूट इज इक्वल्स टू द डायरेक्ट रूट, क्लियर। तो यहां से तो आपको इस पेज से सिर्फ ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से, एंथैल्पी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए, विच इज द ओ लेवल्स स्टफ, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। देखो कैलकुलेशन में याद रखना, 2-3 फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं। मैंने बहुत आसान करने के लिए इसे 2-3 फॉर्मेट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। पहला फॉर्मेट ये है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट बात हमारी शुरू हो रही है, वैसे तो चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। जब जिस ईयर में इंथैल्पी पूछा जाता है बेटा, फिर उस ईयर में 12-13 मार्क्स का भी इंथैल्पी आ सकता है, इसलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ इंथैल्पी इक्विलिब्रियम। देखिए मेन एरियाज बार बार आपको कहूं कि इफ यू आर स्ट्रगलिंग, वैसे तो मेरे बच्चे अक्सरियत ऐसी है जो इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहे, बट एक जनरली बात कर रहा हूँ, इफ देयर इज अ स्टूडेंट जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, तो मैं उसे हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि बेटा इनऑर्गेनिक अच्छे से मेमोराइज कर लो, एंथैल्पी इक्विलिब्रिया कर लो, और ऑर्गेनिक कर लो, ठीक है। कम से कम पासिंग ग्रेड तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें पासिंग ग्रेड तो नहीं लाना, वी हैव टू गेट अ गुड ग्रेड। सो हम तो हर एरिया कर रहे हैं, that's what I'm doing right now। तो डेल्टा एच आर, अगर आप एंथैल्पी चेंज निकालना है, ठीक है, कोई भी एंथैल्पी चेंज, if the formation is given, if the data of formation is given and they ask you to write down the Hass's law, वैसे तो शॉर्टकट ये है कि आप प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस कर देंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, आपको याद होगा ये हमेशा से, ठीक है, क्लियर। और अगर वो आपसे हैस लॉ ड्रॉ करने के लिए बोल देता है, और आपने देखा डाटा फॉर्मेशन का गिवन है या फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप उसी इक्वेशन के नीचे एलिमेंट्स लिखेंगे जो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नजर आ रहे हैं, ड्रॉ दी एरो अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लिखेंगे, ठीक है, और इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। अब इस इक्वेशन में आपको डायरेक्ट रूट और इनडायरेक्ट रूट बहुत क्वाइट इजीली समझ आ रहा है, और अगर नहीं समझ आ रहा, सो यू कैन सिंपली अप्लाई द वेक्टर एडिशन, दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस डेल्टा एच आर इज इक्वल्स टू एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और अगर आप इसे सेट करेंगे फॉर डेल्टा एच आर, तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को
माइनस कर देंगे किससे, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से, ऐसे ही ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। और इसी की बेसिस पे एक की पॉइंट और याद रखिएगा, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज 0। अच्छा, एक बात और यहाँ से याद आ गई मुझे, अच्छा हुआ। तो यस, लेट्स टॉक अबाउट दिस एज वेल। देखो, एक की पॉइंट ये याद रखना कि डेल्टा एच फॉर्मेशन एलिमेंट्स की 0 होती है, ठीक है। इसी तरह से याद रखना कि कंबस्शन ऑक्सीजन की नहीं होती, ठीक है, 0। इसी तरह याद रखना कि कंबस्शन कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती, ठीक है, 0। इसी तरह याद रखना कि कंबस्शन वाटर की नहीं होती, 0, ठीक है। तो ये सारी आपके पास वैल्यूज क्या होती हैं, 0 होती हैं। वाई? बिकॉज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन। तो अगर ये भी कंबस्ट हो सकते होते तो फिर ये मिलते क्यों, फिर वो चीज मिलती ना जो जिसमें ये कंबस्ट होने के बाद कन्वर्ट होते, ठीक है। So whenever you are provided with the combustion data, they will never provide you with the combustion of oxygen, carbon dioxide, and water. In a similar way, they provide you all the formation data except the formation of elements. याद रहेगी, लिख लो अपने पास अगर ये नहीं लिखा हुआ आपने तो। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स। तो देखो, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। इसने कहा भाई कि आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ standard enthalpy change of formation is given. You can see a lot of formation data is given, like 3 formation values. Formation of carbon dioxide, मैंने कहा combustion 0 होती भाई, formation होगी, ठीक है। Formation of methanol and formation of water is given. अच्छा, अब यहाँ आपको वो कंफ्यूज कर सकता था किस तरह कि वो इस वैल्यू को डेल्टा एच सी ऑफ कार्बन कह के दे देता। तो हमारा मेन कंपाउंड कौन सा है बेटा, द मेन कंपाउंड इज ethanol and the formation of ethanol is given, तो हम इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेट ही अप्लाई करेंगे। अब आपने इक्वेशन के नीचे क्या लिखा, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की एंथैल्पी वैल्यूज लिखी। -394 is enthalpy of reactant, -443 is enthalpy of product. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया, गेट योर आंसर, डन। इतना ही आसान है, इससे ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसी बात को हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, इट्स सेम क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पर, ठीक है। देखिए, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है, ठीक है, क्लियर। कंबस्शन की डेफिनेशन लिखनी है और इक्वेशन लिखनी है कंबस्शन की, डीएमई की। डीएमई क्या है जनाब, डीएमई इन्होंने दिया हुआ है CH3 OCH3, ठीक है। तो आपको इक्वेशन लिखनी है बेटा, CH3 OCH3 reacting with oxygen should form carbon dioxide plus H2O, क्लियर। डीएमई इज लिक्विड, बता दिया होगा इन्होंने कहीं से, ये लिक्विड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, गैस एंड देन गैस, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन 6, यहाँ आ जाएगा 3। अब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 और 2 to the 4, 7। एक ऑक्सीजन ऑलरेडी आ रहा है कहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर लग जाएगा 3। बैलेंसिंग क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, स्पेशली कंबस्शन की बैलेंसिंग इन विच यू हैव organic compound in which you have oxygen is present, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, क्योंकि फिर हम उनके ऑक्सीजन को स्किप करके डायरेक्ट टोटल ऑक्सीजन के साथ 7/2 या 7 लगा देते हैं, सही है। यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। उसने कहा डीएमई, अब डेटा क्या गिवन है, मैंने सिर्फ डेटा देखा था, डेटा फॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है। सो हमेशा मैंने यहाँ लिखा कि इट शुड बी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और आपने लिखा कि जनाब -239 फॉर्मिंग CH3C -184 प्लस -280, ठीक है।
make sure that you multiply this value by 2 because we have 2 here. Now this is your reactant, this is your product. Delta H निकालना है, आप क्या करोगे? Product minus reactant because the data of formation is given. Clear? अब इसी क्वेश्चन में, clear? इसी क्वेश्चन में अगर ये आपने देख लिया तो आसान सी बात है, मैं इसको रब कर रहा हूं. अगर वो आपसे कहता और कह सकता है एग्जाम में कि ड्रॉ द एंथैल्पी साइकिल और एनर्जी साइकिल, ठीक है, ये ड्रॉ करना है अगर, तो हम क्या करते हैं? फॉर्मेशन का डाटा गिवन है, ठीक है, यानी फॉर्मेशन को इन्वॉल्व करना है. फॉर्मेशन का मतलब वी हैव टू इन्वॉल्व एलिमेंट्स, तो मैंने यहाँ लिखा कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है. अब इन्हीं एलिमेंट से मिलके ये बना है, ठीक है. So this is called 2 times delta H formation of CH3OH. इन्हीं एलिमेंट से मिलके ये दोनों बने हैं, तो चाहे मैं 2 एरो ड्रॉ करूं या एक ही एरो पे दोनों को ऐड अप करके लिखूं, इट्स द सेम थिंग. So this is enthalpy change, formation of CH3O CH3 plus enthalpy change, formation of H2O. ये हो गया इसका कंप्लीट, और ये है डेल्टा HR. दिस इज अ कंप्लीट एनर्जी साइकिल. आसान है ड्रॉ करना, ठीक है. अगर एनर्जी साइकिल बनाना है फॉर्मेशन के हिसाब से किसी भी इक्वेशन का नीचे एलिमेंट लिखो, एरो की डायरेक्शन अपवर्ड, ठीक है. अब देखो डायरेक्ट रूट इनडायरेक्ट रूट कौन सा है? दिस इज द इनडायरेक्ट रूट एंड दिस इज द डायरेक्ट रूट. क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ, कैन आई से दैट 2 टाइम delta H formation of CH3OH plus delta HR is equals to delta H formation of CH3O CH3 plus delta H formation of H2O. ठीक है. अब डेल्टा HR के लिए आप सेट कर दीजिए इक्वेशन को, सॉरी डेल्टा HR के लिए इक्वेशन को सेट कर दीजिए, वही होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही आएगा एट द एंड. आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे, गेट योर आंसर. सम टाइम इन एग्जाम दे सेपरेटली आस्क 1 मार्क दिस कि एनर्जी साइकिल ड्रॉ करें. तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इफ यू हैव टू ड्रॉ द एनर्जी साइकिल एंड विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन, तो आप नीचे एलिमेंट लिखेंगे, एरो की डायरेक्शन बनाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है. इन अ सिमिलर वे, if the data of combustion is given as in this question, ठीक है, तो combustion में क्या करना है? reactant minus product because the data of combustion is given. बस सिर्फ इस तरह से highlight कर लो and get your answer quickly, ठीक है. अब कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की combustion given है 283 प्लस हाइड्रोजन की given है which is -286. फॉर्मिंग इसकी combustion given है -726. बार बार कह रहा हूं कि इस केस में आपको वो कंबस्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी दे सकता है. आपको सिर्फ मेन कंपाउंड्स देखने, मेन कंपाउंड इज दिस वन, और इसकी क्या वैल्यू गिवन है? कंबस्शन, तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही करेंगे, ठीक है. एंड गेट योर डेल्टा H बाय रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. आसान से आ जाएगा आंसर, 1 मिनट में आ जाएगा, ठीक है. इतनी ही वर्किंग रिक्वायर्ड है, ज्यादा वर्किंग भी रिक्वायर्ड नहीं है. अब सवाल ये है कि इफ दे आस्क यू अगेन इन टर्म्स ऑफ कंबस्शन, इफ दे आस्क यू टू ड्रॉ द एनर्जी और एंथैल्पी साइकिल, तो क्या गिवन है? डाटा कंबस्शन के हिसाब से बनाना है बेटा. तो मैंने नीचे कार्बन और हाइड्रोजन ऊपर नजर आ रहे हैं ना मुझे, चाहे किस फॉर्म में भी है, अल्कोहल, कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाटएवर इट इज. तो मैंने यहाँ उनकी कंबस्शन प्रोडक्ट लिखी विच इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, ठीक है. इन्हीं से मिलके इन्हीं की कंबस्शन से ये बनेगा, ठीक है. जब कार्बन मोनोऑक्साइड कंबस्ट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हाइड्रोजन कंबस्ट होगा तो वाटर बनेगा. सो दिस इज बेसिकली एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन बाय 2. यहाँ भी मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है. इन अ सिमिलर वे, when methanol getting combusted, it will give you the same product. So this is the combustion of CH3OH, ठीक है, and this is delta HR. Now the indirect route is this one and direct route is this one. ऐसे ही है ना? Clear? Indirect vector addition apply करेंगे तो can I say that
delta HR plus enthalpy change of combustion of CH3OH forming delta H combustion of carbon monoxide plus 2 times enthalpy change of combustion of hydrogen. अब आप डेल्टा HR कैलकुलेट करना चाहेंगे, फॉर श्योर आंसर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट से भी सेम आएगा. क्लियर? So this is again the area which is important, that you should know how to draw the energy cycle in terms of combustion as well. ठीक है, ये तो दो फॉर्मेट. तीसरे फॉर्मेट में it could be any journal energy cycle, डायरेक्ट रूट और इनडायरेक्ट रूट से रिलेटेड, वो थोड़ा सा आपको रिलेट करना आ जाएगा और आता भी है बहुत सारे बच्चों को, इफ इट इन द रीसेंट पेपर्स और कुछ इन प्रीवियस पेपर्स में भी है, सो यू कैन इजीली डू दिस. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन. ठीक है ना, हेसेस लॉ के अकॉर्डिंगली रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है आपको. ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया. -129 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ मैंने एनर्जी साइकिल ड्रॉ नहीं किया. नाउ इफ द बॉन्ड एनर्जी डाटा इज गिवन, दो तीन की पॉइंट है. पहली बात तो बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करना आना चाहिए. बॉन्ड एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एनी पर्टिकुलर बॉन्ड. हम नॉर्मली बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड ब्रेकिंग की टर्म में डिफाइन करते हैं. आप बॉन्ड फॉर्मेशन की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, कोई इसमें मतलब गलत बात नहीं है, आपके मार्क्स नहीं डिटेक्ट होंगे. ठीक है, सो बॉन्ड ब्रेकिंग आज ही मैंने ओ लेवल से ही पढ़ाया. द बॉन्ड ब्रेकिंग इज बेसिकली एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक. अच्छा, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के साथ. लार्जर द बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर वुड बी द बॉन्ड एनर्जी, बिकॉज if the bond length is larger, means there's a weaker force of attraction between two atoms and less energy is required to break that bond. ठीक है, if the energy required, ये एक स्टेटमेंट है quite simple, क्योंकि हम जब डेल्टा HR निकालते हैं बेटा, तो मैंने एक जर्नल फॉर्मूला आपको बताया है कि डेल्टा HR निकालने के लिए आप बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए. ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग वही बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी वैल्यू सेम होती है. ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आप पॉजिटिव यूज करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नेगेटिव. तो उन दोनों वैल्यू, सारी वैल्यूज को एड अप कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा. बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्टेंट्स की होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी होती है? प्रोडक्ट की होती है. क्लियर? सो अगर आप BP माइनस BF यूज कर रहे हैं, तो आप बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों पॉजिटिव वैल्यूज इंसर्ट करें, नेगेटिव साइन ऑलरेडी बना हुआ है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा. की पॉइंट यह है कि इफ द energy required to break the bond is greater as compared to the energy release, BB वैल्यू बड़ी है, BF वैल्यू स्मॉलर है, तो डेल्टा HR पॉजिटिव आएगा, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा. अगर BB स्मॉलर है, BF लार्जर है, less energy is required, more energy is released, the reaction is going to be exothermic. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द की पॉइंट. और यहाँ पर एक एंथैल्पी टाइप डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाती है, कि किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट्स के सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड द बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक. तो ऊपर की तरफ मैंने ड्रॉ किया है. ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के बाद सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में ऐड होती है. तो आफ्टर एवरी एंडोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस. ठीक है, तो पहले सबसे पहले कार्बन के बॉन्ड ब्रेक किए, एटमाइजेशन ऑफ कार्बन हुई, यानी कार्बन के बॉन्ड ब्रेक हुए, कार्बन गैस फॉर्म में चला गया. फिर ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक हुए, ऑक्सीजन एटम फॉर्म में चला गया. उसके बाद कार्बन गैस एटम फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस एटम फॉर्म में कंबाइन हुए, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, दिस इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई. नाउ इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, like the diagram, you can see the bond formation value is larger and the sum of all these bond breaking is smaller. That's why the delta H value is negative. ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, देखो जब Q इक्वल टू MC डेल्टा T अप्लाई करवाएगा, हमने लैब में ये बात पढ़ी होगी, तो वो कहेगा कि योर आंसर इज नॉट सेम एज द आंसर्स प्रेजेंट इन द बुकलेट्स. तो आप बोलेंगे बिकॉज वी एक्सपेरिमेंटल मेथड है एंड बिकॉज ऑफ हीट लॉसेस ऐसा हो रहा है, तो आप हीट लॉसेस की बात लिखेंगे. हाउ टू प्रिवेंट हीट लॉसेस, तो वो बेटर इंसुलेशन, ये सारी चीजें सजेस्ट कर देंगे P3 में. तो अगर Q is equal to MC delta T से जो आंसर आ रहा है वो पूछे ये आंसर एक्यूरेट क्यों नहीं है, तो आप बोलेंगे हीट लॉसेस की वजह से. इफ दे आस्क यू टू यूज द बॉन्ड एनर्जी वैल्यू एंड योर आंसर इज नॉट एक्यूरेट, तो आप बोलेंगे बिकॉज वी यूज द एवरेज बॉन्ड एनर्जी वैल्यू. जो डाटा बुकलेट में आपको वैल्यूज गिवन होती हैं बेटा, दीज आर द एवरेज बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज. मींस OH बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, वाटर में भी है, the value is slightly different, so it is not possible for us
to use the exact value of that particular molecule. So we normally use, they give us the average bond energy value, and these average values are different from the actual value. That's why answer is slightly different. So अगर bond energy से calculation करवाइए and after the calculation वो आपसे कह रहा है कि आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है भाई ये बताइए, तो आप बोलेंगे बिकॉज वी यूज द एवरेज बॉन्ड एनर्जी वैल्यू नॉट द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी वैल्यू ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगी ये बात। और तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। क्यूबिकल डेंसिटी डेल्टा टी में आंसर हीट लॉसेस की वजह से, बॉन्ड एनर्जी में आंसर डिफरेंट आता है एवरेज बॉन्ड एनर्जी वैल्यू को यूज करने की वजह से। ठीक है, so this is basically the complete revision of enthalpy। अब बॉन्ड एनर्जी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा तो क्वेश्चंस को वो आगे पीछे घुमा के आपसे पूछ सकते हैं ना। दीज आर द क्वेश्चन। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि you all should know the structure, complete displayed form of these molecules। ठीक, तो let's draw the complete displayed form of this molecule। so this is CH3 CHO। CHO is aldehyde है ना, तो CH3 का मतलब 3 हाइड्रोजन्स and CHO is aldehyde यानी C double bond OH। agreed? And this is HCN, H and CN, and you know that CN is carbon triple bond nitrogen forming this molecule। तो पहले CH3 है तो मैंने CH3 लिखा, फिर है CH ब्रैकेट OH यानी CH ब्रैकेट OH यानी OH BC कार्बन पे और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। एंड द लास्ट वन इज CN विच इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। देखो डिस्प्लेड फॉर्म बन गई। अब काउंट करते हैं हाउ मेनी कार्बन हाइड्रोजन वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 2 3 4 and 5। सो वी हैव 5 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, and we have 1 carbon carbon bond, we have 1 carbon double bond oxygen, and we have 1 carbon triple bond nitrogen। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये है बॉन्ड ब्रेकिंग। in a similar way on the right hand side 1 2 3 4 carbon hydrogen bond। अब ये नहीं होगा कि लेफ्ट राइट कैंसिल करो, जस्ट प्लग इन ऑल द वैल्यूज, सब्ट्रैक्ट होके खुद ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 और 1 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड plus 1 carbon oxygen bond plus 1 oxygen hydrogen bond plus 1 carbon triple covalent bond nitro। make sure you mark them ताकि आपसे मिस ना हो जाए। सारे बॉन्ड हमने लिख दिए। now this is bond formation। अब आपको डेल्टा H निकालना है बेटा। आप करो बॉन्ड ब्रेकिंग, ये वाली वैल्यू माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन, ये वाली वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू गोइंग टू यूज द बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। ठीक है, क्लियर? सो और ये सिमिलर क्वेश्चन है। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस क्वेश्चन की कर सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी से क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्टेड है कि बिल्कुल बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन योर बुकलेट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 2 क्वेश्चन ऑफ एंथैल्पी चेंजेस। ये बहुत ओ लेवल पे। बोलो बेटा। सर मैं इस टॉपिक से नहीं, मुझे ये चीज पूछनी थी आपसे कि जो हमारे पेपर्स हैं मई जून के, उसमें पीएच कर्व्स वगैरह इतने नहीं आते, तो क्या वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मई जून के पेपर्स में? फेब मार्च में ज्यादा दिखते हैं मुझे, पहले भी पुराने पेपर में नहीं दिखा नहीं था। ऐसा नहीं, बिल्कुल 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 इम्पोर्टेंट है फिलहाल, और वो चूंकि रिसेंटली एडेड हुए हैं इसलिए पूछे जाएंगे। अच्छे से करके जाना हो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ना सिर्फ ये इंक्लूडेड है बल्कि इंपॉर्टेंट है। देखो अब मुझे जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया। फॉर्मेट क्या चेंज किया? सब कुछ वैसे ही गिवन है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गिवन है। फॉर्मेशन का मतलब ये कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एंड डेल्टा HR वैल्यू गिवन है। और क्या चीज फाइंड आउट करनी है? फाइंड आउट करनी है फॉर्मेशन ऑफ NO। तो क्या फर्क है अभी देखते हैं कैसे करते हैं इसको। बस आप NO की जगह X लगा दीजिए और डेल्टा H इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कीजिए, गेट योर आंसर। जैसे 4 टाइम्स ऑफ -46 प्लस 0। अब एग्जाम में ये भी कंफ्यूजन रह जाती है भाई 0 क्यों है, तो याद रखिएगा बहुत एंड टाइम तक रिवाइज करवा के यही बात बता रहा हूँ कि भाई एलिमेंट इसलिए 0 होगा।
इसको कर दो 4x प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2O which is minus 242. ठीक है, now this is reactant, this is product. ठीक है, डेल्टा H is equals to product minus reactant करोगे, डेल्टा H की वैल्यू -906 गिवन है, प्रोडक्ट की वैल्यू 4x लगा देना, साथ माइनस समथिंग हो जाएगा जो भी वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू माइनस होगी, माइनस वाली ऑलरेडी आंसर है तो प्लस हो जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना तो क्वेश्चन का हक बनता है कि वो क्वेश्चन को इतना तो ट्विस्ट कर दे कि अब आपको रिएक्शन दे दे, डेल्टा HR दे दे, सारी फॉर्मेशन दे दे, एक फॉर्मेशन मिसिंग हो। ठीक है, इन अ सिमिलर वे डेल्टा HR दे दे, सारी कंबस्शन दे दे, एक कंबस्शन गिवन है, करना फिर भी वही है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। जो अननोन वैल्यू है बेटा उसकी जगह पर x लगाओ और उस x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। आई एम श्योर कि इफ यू डू इट इन दिस वे यू विल गेट योर आंसर करेक्टली। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन, इसमें क्या किया, इसमें एक एडिशनल काम करवा रहा है। एडिशनल काम क्या करवा रहा है, यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन बाय योरसेल्फ, खुद से लिखना है। और डेटा क्या गिवन है, कंबस्शन ऑफ CS2 गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है और फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिवन है। अब वही कंफ्यूजन कि भाई इसे फॉर्मेशन गिवन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करें और कंबस्शन गिवन है तो क्या रिएक्टेंट। तो मेन कंपाउंड क्या है, मेन कंपाउंड है CS2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड वाटर को नहीं इंक्लूड करना क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन इज द कंबस्शन ऑफ सल्फर, सेम थिंग है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन इज द कंबस्शन ऑफ कार्बन। मेन कंपाउंड क्या है, मेन कंपाउंड है CS2 और CS2 की क्या वैल्यू गिवन है, कंबस्शन। व्हेनेवर द कंबस्शन इज गिवन इज ऑलवेज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, लेकिन किस इक्वेशन में, फॉर्मेशन की इक्वेशन में। तो पहले CS2 की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिख लो जो फाइंड आउट करनी है, यानी डेल्टा HF आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने लिखा कार्बन सॉलिड प्लस 2 टाइम्स ऑफ सल्फर सॉलिड, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपके पास कार्बन की कंबस्शन गिवन है बेटा -395 इन फॉर्म कंबस्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कंबस्शन ऑफ कार्बन गिवन है एंड दिस इज द कंबस्शन ऑफ सल्फर गिवन। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ -298 फॉर्मिंग -1110। ठीक है, और आपको डेल्टा HR निकालना है तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बार बार कह रहा हूं कि कंफ्यूजन यही होता है अक्सर बच्चों को, मेरी ऑब्जर्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन गिवन होती है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दे, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सल्फर डाइऑक्साइड इनको छोड़ दो, मेन दूसरे कंपाउंड जो भी गिवन है इनके अलावा अगर उनकी फॉर्मेशन गिवन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, अगर उनकी कंबस्शन गिवन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करो एंड गेट योर आंसर। ठीक है, देखिए एंड बिल्कुल अब आई श्योर यू कि आपसे हर फॉर्मेट का क्वेश्चन हो जाएगा, रिसेंट ईयर के भी हो जाएंगे अगर इनकी अच्छी थी प्रैक्टिस तो। अगर ये वर्कशीट टॉपिकल नहीं भी की है तो बेटा इनको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को कम से कम क्विकली सॉल्व करो, मैच योर आंसर विद द मार्किंग स्कीम, इफ द आंसर इज करेक्ट देन स्टार्ट डूइंग द मोस्ट रिसेंट ईयर। फॉर्मेशन का डाटा गिवन है और इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई द फॉर्मेशन ऑफ AgI by 3, द फॉर्मेशन ऑफ AgF by 3, इनको 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना बिकॉज द वैल्यूज आर डिफरेंट, दोनों साइड हो रहा है माइनस भी हो रहा है लेकिन द वैल्यूज आर डिफरेंट तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। ये भी कॉमन एरर है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स एंड में रहता है, वो सही करते हैं लेकिन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू रीराइट द इक्वेशन बैक अगेन, you write down the values with the correct multiplication with the these coefficient। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज गिवन है और इक्वेशन आपको खुद बनानी है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड की, और आपको एंथैल्पी चेंज बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज वैल्यू शायद ऊपर दी हुई है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वैल्यू आप। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर फॉर्मेशन का डाटा गिवन है, इनकी फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो सिर्फ 2 फॉर्मेशन वैल्यूज गिवन है आपको, ये SS की गिवन है और उसकी गिवन है बिकॉज ये दोनों तो एलिमेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके अपना आंसर निकालेंगे। आप इंथैल्पी चेंज के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज
done with the enthalpy changes, beta. If you have any question in mind, you can ask.